दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके बेटा, ओके बेटा। तो परसों जब हमने बंद किया था, क्लोज हुई थी मीटिंग, तो उस वक्त हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे। अ बॉडी मूव्स अलोंग, नहीं जेड एक्सिस वाला नहीं, ये दूसरा किया था हमने, वो ये a particle moves from position r1 equal to 3i plus 2j minus 6k meter to r2, जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 14i plus 13j minus 9k मीटर। अंडर द, ये जो पोजीशन चेंज करता है किसकी वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 4i plus j plus 3k न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन करनी है। तो हमें पोजीशन देता है, पहली पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ये है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पहले देखनी है। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो पहला पोजीशन वेक्टर है, लेट अस से वो पॉइंट ए है, यहां पर वो उसको ज्वाइन करता है, उसके कोऑर्डिनेट से 3i, ये वाला 3i 2j माइनस 6k। उसके बाद वो डिस्प्लेस होता है इस डायरेक्शन में, ए टू बी। इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये दिए हैं 14i प्लस 13j माइनस 9k, जो यहां पर लिखा है। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट तो हमारी ए बी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी ए बी है, लेकिन ए बी को हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक, ट्राइंगल लॉ, this plus this is equal to this. So let us suppose this is delta r, displacement. So r1 plus delta r as per triangle law must be equal to r2। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, so delta r will be equal to r2, shifting this to right side, minus r1। Now we are given the values of r2 as well as r1. We'll substitute. So what is r2? 14i plus 13j minus 9k minus what is r1? That is 3i plus 2j minus 6k। Now we have to subtract this. Subtract क्या होगा? I कंपोनेंट वाले में से, यानी x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, y में से y कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे और z में से z कंपोनेंट, एज पर द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। So 14i minus 3i, it will be 11i cap, 13j minus 2k to minus 2j, that will equal to minus, that will be plus 11k, minus 9k plus 6k, that will be minus into minus, that will be plus, so it will be minus 3k, 3j, and this will be 3k. This is our displacement. Now what is work done? We know that work done, W is equal to F dot S। यहां पर हम एफ एस कॉस थीटा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है, तो हम सीधे एफ डॉट एस करेंगे। सो एफ हमारे पास दिया है ये 4i प्लस जे प्लस 3k कैप, ओके, डॉट, ये हमारा निकला डिस्प्लेसमेंट 11i कैप प्लस 11j कैप माइनस 3k कैप। ठीक,
This will be unit will be here Newton. Okay, because this is in meter, this will be in joules. Okay, Newton, meter, that is joule. So now 4I into 11, we have 44. What is I dot I? I dot I is equal to 1. So it will be 44. Similarly, rest will be 0. I dot J is 0. I dot K is equal to 0. Now, J dot I will be 0. J dot J will be 1. So it will be 11 ones are 11. Rest will be 0. Now, if we dot product with this, 3 K dot I 0. 3 into this J will be 0. 3 into 3, that will be minus 9. K dot K will be equal to 1 joule. So it will be 46. 11 minus 9 over 2. 44 plus 2, 40. This is your answer. Okay, understood? हाँ बेटा, ठीक है? Okay. Now next numerical जो है वो आपकी है a man weighing 50 kg, weighing 50 kilogram force, oh, 50 kilogram force supports a body of 25 kilogram force on his head. What is the work done? What is the work done when he moves through a distance of 20 meter up an incline of 1 in 10. So this is numerical. A man is weighing 50 kg किलोग्राम फोर्स, क्योंकि हम किलोग्राम फोर्स में भी वो यूनिट ग्रेविटेशन यूनिट लेते हैं, ठीक. सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ 25 किलोग्राम फोर्स ऑन हिज हेड. तो उसके अपना वेट 50 kg है और उसके हेड पे 25 kg. व्हाट विल बी द टोटल मास? टोटल मास विल बी सॉल्यूशन. टोटल मास एक तो मैन का हो गया और प्लस जो उसके हेड पे है, दैट इज इक्वल टू, लेट अस से m, that will be equal to 50 plus 25 kilogram force, that will be equal to 75 kilogram force. ठीक. Now कितनी डिस्टेंस वो चलता है? Supports on his head. What is the work done when he moves through a distance of 20 meters? So distance traveled कितनी है? Let us say s, that is given by 20 meter. Okay. Now work done when he moves through a distance on up an incline. Up an incline होता है inclined plane. ठीक.
अब इंक्लाइन प्लेन क्या है? 1/10। उसका मतलब होता है अगर हाइपोटेन्यूज में वो 10 मीटर चला या 10 किलोमीटर चला, जो इंक्लाइन होगा वो अप बाय 1 होगा। दैट मीन्स अगर परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। इसी को हम बोलते हैं 1/10। दैट इज साइन थीटा इज 1/10। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कोई सुन रहा है? हाँ, 1/10 दैट मीन्स परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 10 है। तो हमें वर्क डन निकालना है। ठीक, नाउ जब ये यहाँ पर मैन होगा, सपोज ये मैं ब्लॉक बनाता हूँ पूरा एक ही ब्लॉक, सपोज ये सारा सिस्टम है। अब इसका वेट कहाँ होगा? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस। नाउ इसको कौन खींच रहा होगा? ग्रेविटी इसको यहाँ, लेकिन यहाँ कौन सा फोर्स होगा? एम जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर होगा आपका आर कॉस थीटा, दैट इज एम जी साइन थीटा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में कौन खींच रहा है इसको? यही इसकी ग्रेविटी यहाँ पुल कर रही है। ठीक, इस डायरेक्शन। लेकिन मैन कहाँ जाता है? ऊपर। समझो ये मैन है पूरा सिस्टम, कितना चलता है आगे? 20 मीटर। ठीक, क्लियर? सो डिस्टेंस तो 20 मीटर है। साइन थीटा कितना है आपका? 1/10, दैट इज 1/10। ठीक, लेट अस टेक ग्रेविटी जी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द फोर्स? फोर्स कितना होगा उसको? F विल बी इक्वल टू, जो इस पे पुल कर रहा होगा, मैन ऊपर जा रहा है और उसको ग्रेविटी का ये कंपोनेंट, इसको सीधे ये, चूंकि मैन नीचे नहीं ऐसे आ रहा है, ऐसे खींच रहे, इसको कौन सा कंपोनेंट खींच रहा है? ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट। ठीक, सो फोर्स विल बी mg sin theta, and what will be the work done? Work done will be force into displacement. Force क्या है आपका? mg sin theta into s. Now what is m? m तो हमने पहले ही लिखा है 75। g कितना है? 9.8। sin theta कितना है? 1/10, so that is 1/10, and distance कितनी है? 20 मीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 1470 जूल। यहां पर समझ में आया? हाँ शहीम? यस सर। हाँ, ये देखा? यस जो सर। अगर मैन ऐसे नीचे आता सीधे तो ग्रेविटी जी इसको खींचती, क्योंकि मैन को कौन सा फोर्स पुल कर रहा है? यहाँ इसका ग्रेविटी का कंपोनेंट जी साइन थीटा, ये ग्रेविटी का कंपोनेंट जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा, उसी के अगेंस्ट वो ऊपर जा रहा है। तो फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा एम जी साइन थीटा, ये एक्सीलरेशन हो गई जी साइन थीटा। जब मास से करेंगे मल्टीप्लाई, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई, दिस इज एक्सीलरेशन ए मल्टीप्लाइड बाय द मास, दैट विल बी फोर्स। यही इसको नीचे खेला, उसी के अगेंस्ट मैन ऊपर जा रहा है, जिसका वेट टोटल 75 किलोग्राम फोर्स है। ठीक, ये साइन थीटा कहां से निकाला? ये कहता है हमें द इंक्लाइन ऑफ 1/10, दैट इज साइन थीटा इज 1। ये याद रखना, इंक्लाइन ऑफ 1/10। अगर मैं कहूं इंक्लाइन ऑफ 0.5/2, तो दैट मीन्स 0.5/2 इज साइन थीटा। क्लियर? नाउ एक और न्यूमेरिकल